سلام ٹو آل سننے والوں کو. میرا سید محمد حسن علی حسین علی رحمت للعالمین کا سلام اور دعا ہے. سدا خوش رہیں آپ سب. کیوں جی؟ رب دیاں گلاں کرنا ساڈا، رب کی باتیں کرنا ہمارا جو ہے نا مشن ہے. رب کی باتیں کرنا ہمارا مشن ہے. ہم کیا کریں؟ زندگی دینے والے رب کو تلاش کرنا، یہ ہماری کاوش ہے، کوشش ہے. ہم زندگی دینے والے ایک رب العالمین خدا کو تلاش کر رہے ہیں، کیونکہ زندگی دینے والا جو رب ہے وہ ہے ضرور ہے. وہ زندگی دینے والا جو رب ہے وہ اوپر نیچے آسے پاسے ہر طرف موجود ہے، چاہے وہ نظر نہیں آتا لیکن وہ ہے ضرور. ہماری کاوش ہوتی ہے زندگی دینے والے رب کو تلاش کرنا. زندگی دینے والا ایک رب ہے، وہ ہے ضرور ہے. وہ جو کوئی بھی ہے ضرور، اسی کو ہم تلاش کر رہے ہیں. آئی ایم اسپیکنگ سید محمد حسن علی حسین علی رحمت للعالمین. لوگ کہتے ہیں رحمت للعالمین اپنا نام کیوں رکھتے ہو؟ دیکھو، رحمت للعالمین جو نام ہے یہ نام سب انسانوں کو رکھ لینا چاہیے، کیونکہ رحمت للعالمین کا مطلب ہوتا ہے، یہ لوگ پتہ نہیں یہ نام رکھتے کیوں نہیں اپنا نام رحمت للعالمین. یہ لوگ اپنا نام پتہ نہیں کیوں نہیں رکھتے، حالانکہ یہ نام سب سے پیارا نام ہے. اور اپنا نام رحمت للعالمین رکھ لینا کوئی گناہ تو نہیں ہے نا. رحمت للعالمین کا مطلب ہوتا ہے کہ سب مخلوقات کے لیے رحم کی دعائیں کرنا، اور جو لوگ کسی کو تکلیفیں نہیں دیتے اپنی زبانوں سے، ہاتھوں سے، جو سب کے لیے اچھا سوچتے ہیں نا، جو کسی کو جہنم میں، دوزخ کے عذاب میں پھینکنے کی کوشش نہیں کرتے، جو کسی کو اپنے ہاتھوں سے، زبانوں سے تکلیفیں نہیں پہنچاتے، اور جو لوگ سب مخلوقات کے لیے رحم کی دعائیں کرتے ہیں، وہ سب لوگ جو ہیں نا وہ رحمت للعالمین ہی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ رحمت للعالمین جو نام ہے یہ نہیں رکھنا چاہیے. یہ رحمت للعالمین نام اگر آپ رکھیں گے نا، جتنے بھی انسان، جنات، فرشتے، یہ نام سب سے پیارا نام ہے رحمت للعالمین. یہ نام جن لوگوں کے بھی نام ہوں گے یہ رحمت للعالمین، قدرتوں ان کے دلوں سے سب مخلوقات کے لیے رحم کی دعائیں نکلتی رہیں گی، اور وہ سب مخلوقات کے لیے، سب مخلوقوں کے لیے اچھا سوچیں گے، رحم کرنے کا سوچیں گے. اور وہ کسی کو اذیت دینے کی کوشش ہی نہیں کریں گے نا. یہ نام رحمت للعالمین ایسا نام ہے، یہ میرا نام بھی ہے سید محمد حسن علی حسین علی رحمت للعالمین. نام رکھ لینا کوئی گناہ نہیں ہے. رحمت للعالمین جو نام ہے یہ سب سے پیارا نام ہے، اور یہ سب انسانوں کو، فرشتوں کو، جناتوں کو یہ نام ضرور ہر حال میں رکھ لینا چاہیے، رحمت للعالمین. صحیح بات. رحمت للعالمین جو نام ہے، رحمت للعالمین جب ہمارا نام ہے، ہمارا نہ جس کا بھی نام رحمت للعالمین ہوگا وہ کسی مخلوق کے لیے بھی، کسی مخلوق کو بھی برباد کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. وہ سب کے لیے رحم کی دعائیں کرے گا، وہ سب کے لیے اچھا سوچے گا، وہ سب کے لیے اچھا ہوگا نا، اچھا کرنے کی کوشش کرے گا.
रहमत लिल आलमीन का यही मतलब है। जो लोग सब मखलूक़ात के लिए रहम की दुआएं करते हैं वो सब रहमत लिल आलमीन ही हैं। जो लोग किसी को ज़बानों हाथों से तकलीफ़ नहीं पहुंचाते वो सब रहमत लिल आलमीन ही हैं। ये एक रब है, वो रब है कुदरत। वो रब ऊपर नीचे आसे पासे हर तरफ मौजूद है, चाहे वो नज़र नहीं आता लेकिन वो फिर भी मौजूद है। इस रब कुदरत में दुआएं भी कबूल हो जाती हैं। जो बद दुआएं करने वाले होते हैं वो खुद ब खुद बदनसीब हो जाते हैं, बदबख्त हो जाते हैं। दुआएं करने वाले सब मखलूकों के लिए रहम की दुआएं करने वाले, सबको जन्नत की खुशियों की रहम की दुआएं देने वाले, वो सब लोग खुश नसीब हो जाते हैं, मुकद्दरों वाले हो जाते हैं। जो दूसरी मखलूक़ात को जहन्नुम में फेंकने की कोशिश करते हैं वो खुद जहन्नमी बन जाते हैं, बदनसीब हो जाते हैं। जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद उसी गड्ढे में जा गिरते हैं। कुदरत का ये कानून है कि जो लोग जिसके लिए दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे वो खुद उसी गड्ढे में गिर जाएंगे। जो लोग दूसरे लोगों को जन्नत में ले जाने की कोशिश करेंगे वो लोग कभी जहन्नमी बन ही नहीं सकते। ये बात बिल्कुल सच है। जो दूसरे लोगों को, दूसरी मखलूक़ात को जन्नत में ले जाने की कोशिश करते रहेंगे वो खुद भी कभी जहन्नमी नहीं बन सकते, वो खुद भी जन्नती होंगे। क्योंकि जो लोग दूसरों के लिए दुआएं करते हैं उनको किसी की बात दुआ कभी लग ही नहीं सकती। जो लोग दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, जो लोग दूसरों के लिए हमेशा हमेशा रहम की, पक्की पक्की जन्नत की, खुशियों की दुआएं मांगते हैं उन लोगों को किसी जालिम की, किसी की भी बात दुआ कभी नहीं लग सकती। जो लोग दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, जो लोग दूसरों के लिए रहम की, पक्की पक्की जन्नत की, खुशियों की तमन्ना करते हैं, दुआएं करते हैं, उन लोगों को किसी की भी बात दुआ नहीं लग सकती। जो लोग दूसरों के लिए अच्छे होते हैं, जो लोग दूसरों के पर रहम करते हैं, जो लोग दूसरों के लिए रहम की दुआएं करते हैं, उन लोगों को किसी की भी बात दुआ नहीं लग सकती। जो लोग दूसरों को बात दुआ कभी देते ही नहीं हैं, जिन्होंने कभी किसी को बात दुआ दी ही नहीं, उन लोगों को बात दुआ कैसे लगेगी? क्योंकि उन्होंने कभी किसी को बात दुआ खुद तो दी नहीं है, उन्होंने कभी किसी के लिए को बुरा तो सोचा ही नहीं है, उन्होंने कभी किसी को दूसरे को बर्बाद करने की कोशिश ही नहीं की। तो दूसरे लोग उनको चाहे बर्बाद करने की कोशिश करें, चाहे बात दुआएं दें, उनको बात दुआएं कहाँ लगेगी? जो लोग दूसरों के लिए अच्छा सोचें, जो लोग दूसरों को कभी बात दुआ देने की कोशिश ना करें, जिन्होंने कभी दूसरों को बात दुआ कभी भी ना दी हो, उनको किसी की बात दुआ कहाँ लगेगी? ये बात बिल्कुल सच है। जो लोग दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, जो लोग दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, उनको किसी की बात दुआ कभी नहीं लग सकती। ये बात बिल्कुल सच है। ये कुदरत का कानून है, रब कुदरत है, इसमें दुआएं भी कबूल हो जाती हैं, इसमें बात दुआएं भी कबूल हो जाती हैं। बात दुआएं करने वाले खुद बर्बाद हो रहे हैं, दुआएं करने वाले खुश नसीब हो जाते हैं, मुकद्दरों वाले हो जाते हैं, मुकद्दरों वाले खुश नसीब हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। ये रब कुदरत का कानून है। वो रब जो है ऊपर नीचे आसे पासे हर तरफ मौजूद है, हर जगह मौजूद है। ला महदूद है, ला महदूद है। लोग समझते हैं रब ऊपर रहता है। अगर ऊपर एक रब भी है ना, ज़िंदगी देने वाला एक, अगर वो ऊपर है तो फिर नीचे दूसरा, आसे पासे तीसरा, चौथा फिर कौन है? एक का मतलब एक ही होता है, ज़िंदगी देने वाला एक ही है। एक जो है ना, एक का मतलब सिर्फ एक, जब ज़ीरो भी एक होता है। एक आप देखते हैं जैसे एक उंगली होती है, उंगली इंसान की एक फिंगर होती है ना, वन फिंगर होती है, ऐसे एक का मतलब एक को आप जहाँ भी देखोगे, ऊपर नीचे आसे पासे जहाँ भी देखोगे, वो मौजूद होगा हर जगह।
لہٰذا زندگی دینے والا جو ایک ہے وہ ہر جگہ موجود ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں یہ خالی جگہ ہے، یہ خالی جگہ نہیں ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں یہ خالی جگہ ہے، ہر پاس ہر طرف خالی جگہ ہے، یہ خالی جگہ نہیں ہے۔ اس خالی جگہ میں مخلوقیں دوڑ بھی رہی ہیں، کھا بھی رہی ہیں، پی بھی رہی ہیں، زندگی بھی جی رہی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ خالی جگہ ہے، یہ خالی جگہ نہیں ہے۔ میں نے اتنی بار سمجھایا ہے یہ خالی جگہ نہیں ہے، اس آپ کو موت کے بعد پھر زندگی مل جائے گی، اس خالی جگہ میں سے آپ نکل بھی نہیں پاؤ گے۔ یہ زندگی نہیں مٹ سکتی، یہ زندگی کسی کی بھی نہیں مٹ رہی، یہ زندگی مخلوقات کی نہیں مٹ سکتی۔ موت کے بعد پھر زندگی مل جاتی ہے، یہ خالی جگہ ہے ہی نہیں، اس خالی جگہ میں سے کوئی بھی نہیں نکل سکتا، یہ خالی جگہ ہو ہی نہیں سکتی۔ جو لوگ سمجھتے ہیں موت کے بعد زندگی نہیں ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں موت کے بعد مر جائیں گے، جو لوگ سمجھتے ہیں موت کے بعد ختم ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا جناب۔ ازل سے لے کے اب تک جتنے انسانوں کو بھی موت آئی ہے وہ دوبارہ زندہ ہوئے ہیں، ان کو دوبارہ زندگی مل گئی ہے لیکن پردے ڈل گئے ہیں، ان کو دوبارہ زندگی ہر حال میں مل گئی ہے لیکن پردے ڈل گئے ہیں۔ اکیلے جہاں پہ انسانوں کو موت آ رہی ہے وہ انسان وہیں پہ پردے ڈل جاتے ہیں، آگے بھی وہ دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں اور وہیں پہ پردے ڈل جاتی ہے۔ رب قدرت کا قانون ہے، ایک رب ہے، زندگی دینے والا ایک ہے، وہ شاید کسی کو نظر ہی نہیں آ سکتا، وہ رب ہے، وہ نظر شاید کسی کو نہیں آ سکتا۔ زندگی دینے والا ایک ہے، وہ رب ہے، زندگی دینے والا خدا صرف ایک ہے، یہ بات بالکل سچ ہے۔ وہ زندگی دینے والا جو ایک ہے وہ کسی کو بھی نظر نہیں آ سکتا لیکن وہ ہے ضرور ہے، وہ زندگی دینے والے ایک رب اوپر نیچے آسے پاسے ہر طرف موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، لامحدود ہے، لامحدود ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں مرنے کے بعد ہم مٹ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا جناب۔ ارے بھائی مٹو گے تو تب نا، جب زندگی دینے والے رب سے دور جاؤ گے تب بھی مٹو گے نا۔ جب زندگی دینے والے رب سے تو اب ہم مخلوقات، کیڑے مکوڑے مخلوقیں کبھی دور تو جا نہیں سکتی، تو ہمارا نام و نشان، ہماری زندگی کیسے مٹ سکتی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ سوچو تو پھر ہے نا۔ جب ہم مخلوقیں زندگی دینے والے ایک رب سے کبھی دور نہیں جا سکتی تو مٹ کیسے سکتی ہیں، ہمارا نام و نشان کیسے مٹ سکتا ہے؟ جن لوگوں کے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار ازل سے لے کے اب تک، ہمارے دادا نانا پردادا پردادے جو بھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں نا، دادا دادی تو ابھی تو کچھ سال ہوئے، 3-4 سال رخصت ہوئے دنیا سے، لیکن وہ مرے نہیں ہیں۔ پیچھے والی دنیا کی زندگی میں ان کو مردے کی حالت میں زندگی مل گئی تھی اور وہیں سے ان کے اندر سے جو جان نکلتی ہے وہ روح کی حالت میں جان ہوتی ہے، پورا کا پورا آدمی اندر سے مردے میں سے نکل جاتا ہے آگے، لیکن پردہ ڈال جاتا ہے۔ یہ خالی جگہ ہے ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں قبر ہوتی ہے، قبر ہوتی نہیں ہے، قبر نہیں ہوتی، قبر ہوتی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی جو ہم مخلوقات نے دیکھ لی ہے نا، یہ ساری دنیا کی زندگی ایک قبر کی مانند ہے۔ یہ قدرتوں شدرتوں والی کوئی انی قبر ہے جس میں زندگی دینے والا رب بھی پھنس چکا ہے اور ہم مخلوقات بھی اسی دنیا کی زندگی کی قبر میں پھنس چکی ہیں۔ اور اب رب سے تو ہم مخلوقات دور کبھی جا نہیں سکتی، ہمارا نام و نشان بھی نہیں مٹ سکتا۔ ہم مخلوقات ہیں، صرف مخلوقات، رب نہیں، خدا نہیں، بادشاہ نہیں، گاڈ نہیں، بھگوان نہیں۔ یہ جو ایک سوال وہ ذاکر نائک سے کسی نے کیا تھا کہ ذاکر نائک نے پتہ نہیں کون سا وہ ایک سوال تھا، ذاکر نائک کہنے لگا ہر اچھا انسان جو ہے خدا ہوتا ہے۔ جا بے وقوفہ کمڑے انسان، ہر اچھا انسان ہو چاہے برا انسان ہو کبھی خدا ہو ہی نہیں سکتا، ہم مخلوقیں کبھی خدا ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ ایک ہندوؤں کا وہ آدمی تھا، اس نے کہا ہر نیک کام کرنے والا اچھا انسان جو ہوتا ہے خدا ہوتے ہیں،
बेवकूफ़ इंसान। जाकिर नाइक भौंकने लग पड़ा, कहता है हर नेक काम करने वाला अच्छा इंसान जो होता है वो खुदा होता है। अरे भाई, हम मखलूक़ें, कीड़ियाँ मकोड़े, हम खुदा कैसे हो सकती हैं? मखलूक़ात कभी खुदा नहीं हो सकती, मखलूक़ात कभी खुदा नहीं हो सकती। खुदा सिर्फ़ एक है, ये बात बिल्कुल सच है। वो खुदा एक है, वो जो कोई भी है वो है ज़रूर है। उस रब के बराबर कोई भी कोई नहीं, उस रब के बराबर अल्लाह भी कोई नहीं, उस रब के बराबर कोई मखलूक ही कोई नहीं। वो खुदा है, खुदा के बराबर कोई भी कोई नहीं, खुदा के बराबर कोई भी कोई नहीं। खुदा सिर्फ एक है, खुदा के बराबर कोई भी कोई नहीं, ना इंसान, ना जिन्नात, ना फरिश्ते, ना कोई मखलूक। खुदा सिर्फ एक है। वो खुदा, उसको अल्लाह समझ के उसकी इबादत किए जाओ, उस खुदा को अल्लाह समझ के उसको नमाज़ें पढ़ते जाओ। हम उस खुदा को एक समझ के हम उसकी इबादत करते हैं। हम उस ज़िंदगी देने वाले एक रब को हमेशा हमेशा के लिए पक्का पक्का रहमत लिल आलमीन, रहमान रहीम, गफूर रहीम बनाना चाहते हैं। जो लोग समझते हैं कि खुदा एक वाली बात ये झूठी है, वो सब कमले लोग हैं। खुदा एक वाली बात कभी झूठी नहीं हो सकती। बाकी सब बातें झूठी हो सकती हैं, लेकिन एक खुदा वाली बात कभी झूठी नहीं हो सकती। खुदा है ज़रूर है, वो है एक है, ज़िंदगी देने वाला एक है। जब कुछ भी नहीं था, जब ना कुछ ज़ाहिर में था ना कुछ गैबों में था, जब कोई एक लफ्ज़ अल्फाज नहीं था, जब कोई एक रेत के ज़रे जितनी कोई एक चीज़ भी नहीं थी, तब सिर्फ़ एक था। जब दुनिया की ज़िंदगी का नामो निशान ही नहीं था, जब किसी जगह भी कुछ भी नहीं था, तब एक था, एक, और एक ही ये सब कुछ कर रहा है। एक ही रब है, एक ही खुदा, एक ही गॉड है। जब कुछ भी लोग समझते हैं साइंस से साबित कर दो कि अल्लाह एक है, खुदा एक है, ये लोग पागल लोगों की सोचें हैं। जो लोग समझते हैं हमें साइंस से बता दो, साबित कर दो कि वो अल्लाह एक, खुदा जो है वो एक है, वो अल्लाह है। अरे भाई, आपको पता नहीं है ज़िंदगी देने वाला कोई है? हम खुद तो नहीं ना तख्लीक हो गए। वो ज़िंदगी देने वाला एक है, वो खुदा है, वो रब है, वो गॉड है। वो अल्लाह है या नहीं हमें क्या पता, वो खुदा है, वो रब है, बादशाह है, खुदा है। वो अल्लाह है या नहीं है, उस रब के बराबर कोई भी नहीं है। ज़िंदगी देने वाला कोई तो है ना। ये बात तो आपको यकीन है कि इतनी मखलूक़ात तख्लीक हो गई हैं ना, कोई तो है ना ज़िंदगी देने वाला ना। और ज़िंदगी देने वाला सिर्फ एक है, एक, और वही रब है, वही खुदा है, वही गॉड है। ये लोग समझते हैं साइंस से साबित कर दो कि खुदा एक, साइंस से साबित कर दो। बेवकूफ़ लोग, ज़िंदगी देने वाला तुम्हें पता ही नहीं है कि ज़िंदगी ऐसे मिल गई हम मखलूक़ात को। हम छोटी छोटी 5, 10, 7 फुट की मखलूक़ें, इंसान, हमें से खुद ब खुद कैसे तख्लीक हो गए। लोग, कमले लोग ये सवाल करने लग पड़ते हैं साइंस से साबित कर दो कि खुदा एक है। और बेवकूफ़ो, ज़िंदगी तुहानू प्यो ने दे छड्डी है। अपना पानी का कतरा तुसीं बना नहीं सकते, तख्लीक नहीं कर सकते हैं। अपना रिज़क आप पैदा नहीं कर सकते। इन्ना रिज़क तख्लीक होंदा पिया, पैदा होंदा पिया, इन्नियां मखलूकां नूं ज़िंदगी मिलती पई है। ज़िंदगी देने वाला कोई तो है ना, ज़िंदगी देने वाला कोई तो है ना। ज़िंदगी देने खुदा है, वो जो कोई भी है एक है। वो हम मुसलमान उसको अल्लाह समझ लेते हैं। पता नहीं वो अल्लाह है कि नहीं, हमें क्या पता वो अल्लाह है कि नहीं। वो एक है, वो खुदा है, खुदा के बराबर कोई भी नहीं है। समझ आई कि नहीं? खुदा के बराबर कोई भी नहीं है। ज़िंदगी ज़िंदगी देने वाला जो खुदा है ना, ज़िंदगी देने वाला कोई तो है ना, वो खुदा है। ज़िंदगी देने वाला एक है, वो रब है, वो खुदा है, वो है ज़रूर है, उसके बराबर कोई भी नहीं है। वो नज़र आ सकता है या नहीं आ सकता, मुझे लगता है जो ज़िंदगी देने वाला एक है ना, वो शायद किसी को भी नज़र नहीं आ सकता। वो खुदा है। अगर कोई हमें नज़र आ भी जाए, हमें कुदरतें भी दिखा दे, कहे कि देखो मैंने ये तुम्हारे सामने आसमान और ज़मीन तख्लीक कर दी हैं,
ज़िंदगी देने वाला एक है, वो खुदा है। और शायद खुदा किसी को भी नज़र नहीं आ सकता, लेकिन वो है ज़रूर है। वो अल्लाह है या नहीं है हमें क्या पता, वो एक है। ज़िंदगी देने वाला एक है, खुदा है। खुदा के बराबर कोई भी नहीं है। वो नज़र किसी को आ सकता है कि नहीं आ सकता, रब की रब जाने, हमें क्या पता। अगर एक खुदा को मानने वाला शैतान है, तो फिर दो अल्लाह को, दो खुदाओं को मानने वाला कौन सा मुसलमान है, कौन सा पागल इंसान है। लोग समझते हैं साइंस से साबित कर दो कि खुदा सिर्फ एक है। और बेवकूफ़ो, जदों कुछ नहीं सी होंदा उदों एक होंदा सी। जदों कोई एक रेत के ज़रे जितनी कोई एक चीज़ नहीं थी, है ना। जब कुछ भी नहीं था, जब कोई लफ्ज़ अल्फाज ही नहीं होता था, जब कोई इंसान ही नहीं होता था, जब कोई नबी पैगंबर ही नहीं होता था, जब कोई एक लफ्ज़ अल्फाज ही नहीं होता था, जब कोई एक रेत के ज़रे जितनी, जब कोई एक चीज़ भी नहीं होती थी किसी जगह भी, तब सिर्फ एक था, एक। जब कुछ भी नहीं होता था तब एक होता था, एक। और वही एक ज़िंदगी दे रहा है, वही खुदा है, वही गॉड। और ये बात बिल्कुल सच है कि ज़िंदगी देने वाला सिर्फ एक है, वही खुदा है, वही गॉड है, वही बादशाह है, वही भगवान है, एक ही है। और हम मखलूक़ें, इंसान, जिन्नात, फरिश्ते, जो तख्लीक शुदा मखलूक़ें हैं, ये कभी भी खुदा नहीं हो सकती, कभी भी गॉड नहीं हो सकती, कभी भी बादशाह नहीं हो सकती। हम उसी खुदा को तलाश कर रहे हैं। ज़िंदगी देने वाला एक है, खुदा को तलाश कर रहे हैं। लोग समझते हैं कि मैं कमला हूँ ना, और भाई हैगियां तो असी कमलियां मखलूकां दे, कोई शक कोई नहीं। मैं कमली मखलूक हाँ। मैं कदों क्या कि मैं सियाना, मैं कमली मखलूक हाँ। मैंने कब कहा कि मैं सियाना हूँ। और भाई असी मखलूकां, असी कमलियां मखलूकां, सियानियां तो से है कोई नहीं। ज़िंदगी देने वाला एक रब है, ये बात बिल्कुल सच है, ये बात कभी झूठी नहीं हो सकती। वही रब, ज़िंदगी देने वाला जो रब है, वही असल बादशाह है, वही सियाना है, वही दना है, वही अक्लमंद है, वही सब कुछ है। हम मखलूकें भाई, असी कमलियां मखलूकां, समझे, असी कमलियां मखलूकां। अब मैं आपको बताता हूँ, अरबों खरबों लामहदूद गैबों से गैबों में भी अगर हर किस्म की जानदार और बेजान मखलूक़ात मखलूक़ें हुई, तो भाई मैं मखलूक़ों को रब खुदा क्यों मानूँ, हैं। तो मैं मखलूक़ात मखलूक़ों को रब और खुदा क्यों मानूँ, जबकि मखलूक़ात मखलूक़ें कभी रब खुदा हो ही नहीं सकती हैं। अगर अरबों खरबों लामहदूद जहानों की दुनियावी ज़िंदगियां भी हुईं, अगर कई लाखों करोड़ों अरबों खरबों अनगिनत बेशुमार बेहिसाब लामहदूद जहान भी हुए और उनमें ज़िंदगियां भी हुईं, और उन अरबों खरबों लामहदूद जहानों की दुनियावी ज़िंदगियों में भी कई लाखों करोड़ों अरबों खरबों अनगिनत बेशुमार बेहिसाब लामहदूद हर किस्म की मखलूक़ात, जानदार और बेजान, और हर किस्म की मखलूक़ात मखलूक़ें भी हुईं, तो भाई मैं मखलूक़ों को रब खुदा क्यों मानूँ यार, हाँ। मैं मखलूक़ात को रब और खुदा क्यों मानूँ, जबकि सच यही है, ज़िंदगी देने वाला एक है, खुदा वही है जो एक है ज़िंदगी देने वाला, सबसे बड़ा भी एक है। जब कुछ भी नहीं था तब भी एक था, जब ना कोई ज़िंदगी थी ना मौत थी तब भी एक था। और ज़िंदगी देने वाला एक ही है, वही खुदा है, वही गॉड है, वही बादशाह है, वही भगवान है, वही रब है। और मैं पत्थरों मूर्तियों की पूजा पाठ क्यों करूं, मैं पत्थरों मूर्तियों को भगवान क्यों समझूं, खुदा क्यों समझूं। मैं कोई कमली मखलूक हूँ। मैं इंसानों को, जिन्नात मखलूक़ात को, इंसान मखलूक़ें, कीड़ियाँ मकोड़े इंसान मखलूक़ें, इनको मैं गॉड भगवान क्यों समझूं। मखलूक़ात को हम खुदा गॉड भगवान क्यों समझें, है ना, जबकि खुदा सिर्फ एक है। जब ये ज़िंदगी हमने देख ली है ना, ये ज़िंदगी जो देख ली है, ज़िंदगी में आ चुके हैं ना,
अब हर चीज़ को पता चल चुका है, हर चीज़ को पता चल चुका है कि ज़िंदगी देने वाला सिर्फ एक है, वो रब है, वही खुदा है, वही गॉड है, वही बादशाह है। और हर मखलूक को ये यकीन है और हर मखलूक को पता है कि सच यही है कि ज़िंदगी देने वाला सिर्फ एक है, वही रब है, वही गॉड है, वही खुदा है, वही बादशाह है। और हम वही असल बादशाह है, जो ज़िंदगी देने वाला है ना, वही असल बादशाह है, हम उसी को तलाश कर रहे हैं। मेरा और सबका और सारे जहानों का और सारियां मखलूकां दा और ज़ाहिर विच और ज़ाहिर से ज़ाहिरां विच और ज़ाहिर से गैब विच और गैब से गैबां विच और कई लखां करोड़ां अरबां खरबां अनगिनत बेशुमार बेहिसाब लामहदूद गैबां से गैबां विच और ज़ाहिर से ज़ाहिरां विच और ज़ाहिर से गैब विच और गैब से गैबां विच और हर पासे हर तरफ हर जगह और कई लाखों करोड़ों अरबों खरबों अनगिनत बेशुमार बेहिसाब लामहदूद जहानां दियां दुनियावी जिंदगियां विच और कई लखां करोड़ां अरबां खरबां अनगिनत बेशुमार बेहिसाब लामहदूद पर्दियां तो पर्दियां विच जिन्नियां कोई अनगिनत बेशुमार बेहिसाब कई लाखों करोड़ों अरबों खरबों अनगिनत बेशुमार बेहिसाब लामहदूद जानदार और बेजान मखलूक़ात, हर किस्म की मखलूक़ात मखलूक़ें हैं। सारियां मखलूकां कदे रब नहीं हो सकदियां, रब कदे मखलूक नहीं हो सकदा। सारियां मखलूकां कदे खुदा नहीं हो सकदियां, खुदा कदे मखलूक नहीं हो सकदा। सारियां मखलूकां कदे गॉड नहीं हो सकदियां, गॉड कदे मखलूक नहीं हो सकदा। सारियां मखलूकां कदे भगवान नहीं हो सकदियां, भगवान कदे मखलूक नहीं हो सकदा। सारियां मखलूकां कदे बादशाह नहीं हो सकदियां, बादशाह कदे मखलूक नहीं ते रब नहीं हो सकदियां, रब कदे मखलूक नहीं हो सकदा। क्योंकि मुझे मैनू और सारियां मखलूकां नू जिंदगी देने वाला कई लाखों करोड़ों अरबों खरबों अनगिनत बेशुमार बेहिसाब लामहदूद कुदरतां वाला, कुदरत वाला, कुदरत देने वाला, कुदरत लेने वाला जिंदगी असल बादशाह खुदा मैनू और सारियां मखलूकां नू जिंदगी देने वाला कई लाखों करोड़ों अरबों खरबों अनगिनत बेशुमार बेहिसाब लामहदूद कुदरतों वाला, कुदरत वाला, कुदरत देने वाला, कुदरत लेने वाला, जिंदगी मौत देने वाला, बादशाहों का सबसे बड़ा बादशाह रब सिर्फ एक है, 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 रब सिर्फ एक है। जिंदगी देने वाला रब ऊपर भी मौजूद है, नीचे भी मौजूद है, आसे पासे हर तरफ मौजूद है, हर जगह मौजूद है, लामहदूद है, लामहदूद है। जिंदगी देने वाला रब अर्शों पे भी मौजूद है, फर्शों पे भी मौजूद है, ऊपर भी मौजूद है, नीचे भी मौजूद है, आसे पासे हर तरफ मौजूद है, हर जगह मौजूद है, लामहदूद है, लामहदूद है। एक में से अब कोई नहीं निकल सकता, एक से दूर अब कोई नहीं जा सकता। जिंदगी देने वाला एक है, उस एक जिंदगी देने वाला एक रब है, उससे अब दूर कोई नहीं जा सकता। जिंदगी देने वाला एक है, एक में से अब कोई नहीं निकल सकता, एक से दूर अब कोई नहीं जा सकता। जिंदगी देने वाला एक ऊपर भी मौजूद है, नीचे भी मौजूद है, आसे पासे हर तरफ मौजूद है, हर जगह मौजूद है, लामहदूद है, लामहदूद है, लामहदूद है, लामहदूद है। इसलिए मैं कहता हूँ ज़िंदगी देने वाला एक है, वो रब है, उसको हर हाल में रहमत लिल आलमीन रहमान रहीम गफूर रहीम बनाने की कोशिश कर लेते हैं। क्योंकि वह ज़िंदगी देने वाला जो एक है ना, वो ऊपर नीचे आसे पासे हर तरफ मौजूद है, चाहे वो नज़र नहीं आता लेकिन वो है ज़रूर।
रब के बराबर यार कोई भी नहीं है ना। रब के बराबर कौन हो सकता है? रब एक है, उसके बराबर कोई भी नहीं है। अगर वो एक रब अल्लाह नहीं है तो उसके बराबर फिर अल्लाह भी नहीं है ना, क्योंकि ज़िंदगी देने वाला एक है, वो रब है। रब के बराबर कोई भी नहीं है, ना अंबिया कराम, ना औलिया कराम, ना कोई। रब सजदा सिर्फ ज़िंदगी देने वाले रब को ही करना चाहिए। ये लोग कहते हैं यार, है ना, वो जिसने हम इंसानों को सजदा नहीं ना किया वो अच्छा है। हम इंसानों मखलूकों को सजदा करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सजदा सिर्फ ज़िंदगी देने वाले एक रब को ही करना चाहिए ना। वो बात जो है ना कि इंसानों को सजदा करने का हुक्म दिया अल्लाह ने, तो शैतान ने सजदा नहीं किया इंसानों को। उसने अच्छा किया है, उसने अच्छा किया शैतान ने, कि हम इंसान कीड़े मकोड़े, हम खुदा थोड़ी हैं जो हमको सजदे करे वो, है ना। वो शैतान, वो भी मखलूक है, हम भी मखलूक हैं। उसने अच्छा किया है, क्योंकि हम मखलूकों को उसने सजदा नहीं किया, उसने अच्छा किया। क्योंकि सजदा सिर्फ ज़िंदगी देने वाले एक रब को ही बरहक है। सजदे उसी को किए जाते हैं जो ज़िंदगी देने वाला एक रब है, उसी के आगे सर झुकाया जाता है, उसी को सजदे किए जाते हैं। वो अच्छा है जिसने हमको सजदे नहीं किए ना। ओ भाई सानू सजदे क्यों कर दे हो? असी मखलूकां कीड़ियां मकोड़े, रब थोड़ी हैं। रब ने कह ही दिता है कि सानू सजदा करो, तां भी तुसी सानू सजदे ना करो, क्योंकि असी मखलूकां। असी कदों क्या कि सानू सजदे करे मखलूकां सानू सजदे करन? असी कदों क्या नहीं ना क्या ना। सानू रब भी इजाज़त अगर देवे कि सानू मखलूकां नू, इंसानां नू सजदे करो, ते ना करे कोई सजदे, सानू कोई सजदे करे ही ना किसी हालत विच। बाकियां नू करो चाहे ना करो, मैनू कोई ना सजदा करे ना। मैं मखलूक हाँ, इंसान हाँ, या इवें कीड़ियां मकोड़े मखलूक हाँ। ओ इबलीस शैतान वो भी मखलूक है, वो केड़ा कोई रब है? वो भी मखलूक है, ऐसे इंसान ही मखलूक हैं। जिन्नात, फरिश्ते, कीड़ियां मकोड़े सब कोई मखलूक ही है। और उसने सही किया है, हम इंसानों को सजदा नहीं किया। सजदा कब्रों को भी नहीं करना चाहिए। ये लोग होते हैं कब्रों को सजदा करने लाग पड़ते। कब्रें होती हैं उनको सजदा करने लाग, मत्था टेकने लाग पड़ते। कब्रों को भी सजदा मत करो। जो कब्रें होती हैं उनको भी सजदा नहीं करना चाहिए, मखलूकों को भी सजदा नहीं करना चाहिए, इंसानों को भी सजदे नहीं करने चाहिए। सजदा सिर्फ ज़िंदगी देने वाले एक रब को ही बरहक है। सजदा सिर्फ ज़िंदगी देने वाले एक रब खुदा को ही करना चाहिए। वो अल्लाह है या नहीं है उसको अल्लाह समझ के आप सजदे करते रहो ना। वो अल्लाह है या नहीं है, वो रब है ज़रूर है, वो खुदा है, उसके बराबर कोई भी नहीं है। अगर वो अल्लाह है तो भी वो रब है, अगर वो अल्लाह नहीं है तो रब की रब जाने। उसको अल्लाह समझ के आप लोग सजदे करते रहे ना। वो रब है, रब के बराबर कोई भी नहीं है। रब को सजदा हर हाल में करो। हम इंसानों को सजदे कभी ना करो, पत्थरों शत्रों को सजदे कभी ना करो, कब्रों को सजदे कभी ना करो, मखलूकों को सजदे कभी ना करो। सजदा सिर्फ ज़िंदगी देने वाले एक रब को करना चाहिए, वही रब है ना। हमेशा हमेशा के लिए सब तू वड्डा, सिर्फ ज़िंदगी देने वाला रब, रहमत लिल आलमीन, रहमत लिल आलमीन, रहमानु रहीम, गफूर रहीम। रहमत लिल आलमीन, रहमत लिल आलमीन, रहमत लिल आलमीन, रहमत लिल आलमीन, रहमानु रहीम, गफूर रहीम।
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ثابت وڈا صرف زندگی دینے والا رب رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمان رحیم غفور رحیم رحمت للعالمین رحمت للعالمین۔ میں زندگی دینے والے رب کو رحمت للعالمین کیوں کہہ رہا ہوں پتہ ہے آپ کو؟ رحمان الرحیم غفور الرحیم کیوں کہہ رہا ہوں؟ مجھے نہیں پتہ زندگی دینے والا رب کون ہے، مجھے نہیں پتہ، وہ ایک ہے، رب ہے، مجھے نہیں پتہ وہ کون ہے، مجھے نہیں پتہ وہ زندگی دینے والا ایک رب وہ کون ہے کون نہیں ہے۔ اس لیے اس رب جو وہ زندگی دینے والا رب ہے ضرور ہے، وہ خدا ہے ضرور ہے زندگی دینے والا، وہ ایک ہے، اس کو ہر حال میں صرف رحمت للعالمین رحمان الرحیم غفور الرحیم ہی پکارتا رہوں گا۔ میں رحمت للعالمین رحمان الرحیم غفور الرحیم رب العالمین کو سب سے بڑا کہتا رہوں گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، چاہے مجھے کچھ ملے چاہے نہ ملے۔ میرا تو یہی قصور ہے نا کہ زندگی دینے والا جو رب ہے، جو رحم کرنے والا ہے مخلوقوں پہ، جو مخلوقات کو ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، رحمان الرحیم غفور الرحیم ہے نا۔ میں تو اس کو رحمت للعالمین رحمان الرحیم غفور الرحیم کہتا رہوں گا، بس یہی میرا قصور ہے۔ مجھے کیا پتہ وہ زندگی دینے والا کون ہے، وہ رب ہے، وہ ہے ضرور ہے، وہ ایک ہی ہے، زندگی دینے والا رب ہے، اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ثابت وڈا صرف زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ثابت وڈا صرف زندگی دینے والا رب رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمان الرحیم غفور الرحیم رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمان الرحیم غفور الرحیم رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ثابت وڈا صرف زندگی دینے والا رب رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمان الرحیم غفور الرحیم رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمان الرحیم غفور الرحیم رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمان الرحیم غفور الرحیم رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمان الرحیم غفور الرحیم اوپر بھی موجود ہے، نیچے بھی موجود ہے، آسے پاسے ہر طرف موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، لا محدود ہے، لا محدود ہے۔ رحمت للعالمین رحمان الرحیم غفور الرحیم عرشوں پہ بھی موجود ہے، فرشوں پہ بھی موجود ہے، اوپر بھی موجود ہے، نیچے بھی موجود ہے، آسے پاسے ہر طرف موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، لا محدود لا محدود لا محدود لا محدود لا محدود لا محدود
ਸਾਰਿਆਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮਖਲੂਕਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ के लिए सब तू बड़ा सिर्फ जिंदगी देने वाला रब रहमत लिल आलमीन रहमत लिल आलमीन। रहमान रहीम गफूर रहीम रहमत लिल आलमीन 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 रहमान रहीम गफूर रहीम रहमत लिल आलमीन रहमत लिल आलमीन रहमत लिल आलमीन रहमत लिल आलमीन। हमेशा हमेशा के लिए सबसे बड़ा सिर्फ जिंदगी देने वाला रब रहमत लिल आलमीन रहमत लिल आलमीन रहमत लिल आलमीन रहमत लिल आलमीन रहमान रहीम गफूर रहीम रहमत लिल आलमीन रहमत लिल आलमीन रहमत लिल आलमीन रहमत लिल आलमीन रहमान रहीम गफूर रहीम रहमत लिल आलमीन रहमत लिल आलमीन रहमत लिल आलमीन रहमत लिल आलमीन। हमेशा हमेशा के लिए सबसे बड़ा सिर्फ जिंदगी देने वाला रब रहमत लिल आलमीन रहमत लिल आलमीन रहमान रहीम गफूर रहीम। कई लाखों करोड़ों अरबों खरबों अनगिनत बेशुमार बेहिसाब लामहदूद कुदरतों वाली ज़िंदगी मौत देने वाली बादशाहों की सबसे बड़ी बादशाह रब कुदरत अब हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ रहमत लिल आलमीन रहमत लिल आलमीन रहमत लिल आलमीन रहमत लिल आलमीन रहमान रहीम गफूर रहीम रहमत लिल आलमीन रहमत लिल आलमीन रहमत लिल आलमीन रहमत लिल आलमीन। ज़िंदगी देने वाला एक है और वो एक शायद किसी को वो रब है, वो शायद किसी को नज़र आ ही नहीं सकता। अरबों खरबों लामहदूद गैबों से गैबों में भी अगर हम देखें ना, वहाँ भी वही ज़िंदगी देने वाला एक मौजूद होगा। अरबों खरबों लामहदूद पर्दों से पर्दों में भी अगर हम चले जाएं ना, अरबों खरबों लामहदूद पर्दों से पर्दों में भी वहाँ भी वही ज़िंदगी देने वाला एक मौजूद होगा। अरबों खरबों लामहदूद जहानों की दुनियावी ज़िंदगियों में भी अगर हम चले जाएं ना, वहाँ भी ज़िंदगी देने वाला वही एक रब मौजूद होगा। ज़िंदगी देने वाला एक ही है, वो शायद किसी को नज़र ही नहीं आ सकता, वो है ज़रूर है, वो रब है, वो खुदा है, वो गॉड है, वो बादशाह है, वो भगवान है, वो किसी को नज़र ही नहीं आ सकता। उसकी मूर्तियाँ शूर्तियाँ बनाने का फ़ायदा ही कोई नहीं। मूर्तियाँ शूर्तियाँ उसकी कमले लोग बनाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी देने वाला जो एक रब है वो दुनिया में किसी रूप में आ ही नहीं सकता। उसका एक ही रूप है, वो रूप किसी को नज़र आ ही नहीं सकता। ज़िंदगी देने वाला एक है, वो दुनिया में किसी रूप में आ ही नहीं सकता। उसका एक ही रूप है, उसका रूप किसी को नज़र आ ही नहीं सकता। वो रब है, वो एक रब है, वो है ज़रूर, उसके बराबर कोई भी नहीं है। ये कमली मखलूकें मूर्तियाँ शूर्तियाँ बनान लग पैंदियां ने। वो जो आमिर खान की बात होती है, वो कहता है कि ना यार ये भगवान का बैटरी किधर है, बैटरी भगवान का बैटरी किधर है। वो कहते हैं इसको इस भगवान में बैटरी नहीं लगता। दुकान वाला कहते हैं अच्छा इस भगवान को, वो आमिर खान कहता है इस भगवान को तूने बनाया। वो दुकान वाला कहता है
ہاں میں نے اپنے ہاتھوں سے اس بھگوان کو بنایا ہے، اپنے ان ہاتھوں سے اس بھگوان کو بنایا ہے۔ عامر خان آگے کہتا ہے یار تو نے بھگوان کو بنایا یا بھگوان